السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کے وقت میں دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی اور دعا کس طرح سے کرنی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو جلد قبول کر لے، تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ آج کی سچویشن یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پڑھنے کے لیے کسی کو دی جائے کسی پریشانی کے علاج کے طور پر، تو 2-3 مہینے پڑھنے کے بعد اگر پریشانی سولو نہیں ہوتی تو انسان وہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر پریشانی میں گھرا ہوا انسان ہے اور نماز کا پابند ہے اور دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن اگر باب اجابت سے اس کی دعا نہیں ٹکراتی تو وہ انسان سجدوں میں بھی کاہلی شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری بچیاں جن کی عمریں بڑھ جاتی ہیں یا وہ جوان ہو جاتی ہیں اور کہیں سے معقول رشتہ نہیں آتا تو خود ہی تلاش میں نکل پڑتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ ہمارا کچھ ہونے والا نہیں، اب کہیں بھی کسی سے رشتہ جوڑ لو اور اپنی زندگی آباد کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے میں نے آج ضروری سمجھا کہ رب سے تعلق کو کس طریقے سے مضبوط کیا جائے اور رب قدیر جل جلالہ پر کس طریقے سے توکل کیا جائے، بھروسہ کیا جائے، اور اس بھروسہ کرنے والے کے بھروسے کی لاج پروردگار کس طریقے سے رکھتا ہے، اور تاریخ کی ان اللہ کی برگزیدہ بندیوں کے توکل کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ جب کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ بھروسہ کرنے والے کی لاج کس طریقے سے رکھا کرتا ہے۔ قرآن مقدس کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک اعراب اپنی جگہ پر حق ہے۔ رب قدیر جل جلالہ نے جو کچھ فرما دیا وہ سچ ہے، اور جو کچھ وعدہ پروردگار نے فرمایا وہ وعدہ بھی اپنی جگہ پر حق ہے۔ اور میرے رب کی شان یہ ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اسی کا ارشاد گرامی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر توکل کرنے والا بندہ جب صحیح معنوں میں اللہ عز و جل پر بھروسہ کر لیتا ہے تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ دنیا کی پریشانیوں کے لیے وہ کافی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بیماری کے علاج کے لیے وہ کافی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ رشتہ ازدواج کے سے منسلک ہونے کی تمنا کی تکمیل کے لیے کافی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ رزق کی تنگی کے لیے کافی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ آخرت کی مصیبت کے لیے کافی ہے۔ معاملہ کوئی بھی ہو، جب تم اللہ پر بھروسہ کر لوگے اللہ ہر معاملے کے اندر تمہارے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، توکل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توکل کے معنی ہوتا ہے سہارے کے، ٹیک کے۔ ایک انسان جو پیر سے معذور ہو اسے بیساکھی کا سہارا چاہیے۔ ایک انسان جو کسی اور پریشانی میں گرفتار ہے جس کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے، وہ سہارا اسے مل جائے تو وہ سہارا کہا جاتا ہے۔ توکل، اللہ اکبر، سہارا۔ اور یاد رکھیں دنیا کے سارے سہارے کمزور ہو سکتے ہیں، مولا کا سہارا کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔
बैसाखी टूट सकती है, अल्लाह पर भरोसा कभी टूट नहीं सकता। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मदद कभी कमजोर नहीं हो सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, कुरान मुकद्दस का मुताला करें तो कई मसाइब का तज़किरा मिलेगा और उन मसाइब के अंदर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने बंदों के हवाले से अपने महबूब के जरिए यह पैगाम भिजवाया कि महबूब लोगों से कह दो कि अल्लाह पर भरोसा करें। आप देखें रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक के अंदर जब मुसीबतें बढ़ती गईं, परेशानियां बढ़ती गईं, तकालीफ बढ़ती गईं और लोगों की सिचुएशन ये रही, मुसीबत के वक्त साथ छोड़ देते और राहत की जिंदगी के अंदर साथ निभाते नजर आते। और कभी कभी ये भी हुआ कि ये कहते दिखाई देते कि ये अल्लाह के मानने वाले मुसीबतों में गिरफ्तार हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए मुसीबतें हमें नहीं पहुंचती मगर वही जो अल्लाह ने लिख दी है। कोई इंसान अगर किसी को मुसीबत में गिरफ्तार करना चाहे नहीं कर सकता, लेकिन अगर कुदरत ने मुसीबत लिख दी है तो दुनिया की कोई ताकत उस मुसीबत से रोक भी नहीं सकती। अल्लाह अकबर। जब मुसीबतें आ जाएं, जब परेशानियां आ जाएं, जब तकालीफ आ जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में कुदरत से रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। जैसा कि आज की सिचुएशन है कि बंदे पर मुसीबत आई, रब से ताल्लुक कमजोर कर दिया, बंदे पर मुसीबत आई, रब से अपना मामला कमजोर कर दिया, बंदे पर मुसीबत आई, रब से भरोसा कम हो गया, बंदे पर मुसीबत आई, इबादत से रिश्ता कमजोर कर दिया, बंदे पर मुसीबत आई, तिलावत का मामला कमजोर हो गया, बंदे पर मुसीबत आई, दीन के रास्ते से फासला बढ़ा दिया, बंदे पर मुसीबत आई, दुनिया के अंदर और गुनाहों में डूब गया। लेकिन अल्लाह अकबर। और कभी ऐसा भी हुआ है कि इन मुसीबतों का मामला जब बढ़ करके होता है और मुसीबतें बड़ी होती हैं तो कुदरत के दर की बजाय इंसान ऐसे दरवाजों की तलाश करता है जिन दरवाजों की सिचुएशन ये है कि उन दरवाजों के अंदर रहने वाले खुद मोहताज और उन दरवाजों के अंदर रहने वाले खुद परेशानियों में गिरफ्तार होते हैं। आपने देखा होगा, अभी कल ही की बात है, हुजूर मुफक्किर इस्लाम के साथ हम बैठे हुए थे, किसी एक शख्स के हवाले से बात निकली, नाम के बगैर हजरत ने फरमाया कि अल्लाह अकबर, मुसीबतों में घिरी हुई चंद औरतें अपनी मुसीबतों के इलाज के लिए ऐसे बाबा के पास पहुंचती हैं जो ये कहते हैं कि हम दिल जारी कर देंगे, और दिल जारी करने की बात कहते हुए अल-अयाज़ु बिल्लाह औरतों की आबरू पर हाथ डालते हैं और औरतों की इज्जत को लूट डालते हैं और न जाने कितनी गलत हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह अकबर। मुसीबतों में बहुत ज्यादा इधर उधर के चक्कर लगाने वाली अगर कोई होती है तो औरतें हुआ करती हैं। मर्द तो इतने चक्कर नहीं लगाता, लेकिन खवातीन का मामला इसमें बड़ा अजीब है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बरगुज़ीदा बंदों की बजाय, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन की बजाय, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत गुजारों की बजाय कुछ ऐसे दरवाजों पर खवातीन पहुंच जाती हैं जहां ना आबरू महफूज होती है, न इज्जत महफूज होती है, और कभी ऐसा भी होता है कि ईमान और दौलत भी महफूज नहीं रहती और रिश्ता भी महफूज नहीं होता। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। याद रखें, मुसीबतें नहीं पहुंचती मगर अल्लाह ने जो लिख दी हैं वो मुसीबतें पहुंच कर रहती हैं। अब मुसीबतें बड़ी होती हैं, तकालीफ बड़ी होती हैं, नाकाबिल बर्दाश्त होती हैं, कभी कभी इंसान झुंझला जाता है और परेशान हो जाता है, मायूसी के दलदल में डूब जाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर वो क्या करे?
परवरदिगार ने फरमाया जिसकी तरफ से मुसीबत आई है हुआ मौलाना, वही तुम्हारा मालिक है, वही तुम्हारा खालिक है, वही तुम्हारा पालनहार है, वही तुम्हारा मददगार है। जिसकी तरफ से मुसीबत आई है उसी पर भरोसा करके उसको पुकारो, उससे लौ लगा लो, उसकी इताअत की तरफ बढ़ो, उसकी फर्मा बरदारी की तरफ बढ़ो, वो तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। मुसीबतें जिसकी तरफ से हैं वो परवरदिगार बड़ा अजीम है। हमारी तकदीरें उसी ने लिखी हैं, हमारा नविश्ते तकदीर उसी का लिखा हुआ है, और उससे ज्यादा मेहरबान कौन हो सकता है। ये बात अच्छी तरह से याद रखें कि परवरदिगार जल्ल जलालहू से ज्यादा मेहरबान कोई दूसरा नहीं हो सकता। और अल्लाह की अता से उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कदीर ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। आप अंदाजा लगाएं परवरदिगार अपने बंदों पर कितना मेहरबान है, किस तरीके से करम नवाजियां फरमाता है। कुरान मुकद्दस की आयत उससे भरी पड़ी नजर आएंगी। अब यहां मुझे आज आपको यह समझाना है, अल्लाह न करे, सदबात न करे, कभी कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तकालीफ आ जाए, तो इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें, रब से रिश्ता कमजोर करने की बजाय ये सोच लें और ये यकीन कर लें कि परवरदिगार जल्ल जलालहू से बड़ा कोई भी नहीं, और अल्लाह अपने हबीब के वसीले से मुसीबतों को टाल दिया करता है। अल्लाह के फरमान पर अमल करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करो, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। कभी ऐसा भी होता है कि खवातीन दुआएं करती हैं, वज़ाइफ करती हैं, बहुत सारे मर्द दुआएं करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, और कभी उनकी दुआएं और जो वो चाहते हैं नहीं मिलता तो अफसुर्दा हो जाती है और कहते हैं जब दुआ कबूल नहीं होती तो करके क्या फायदा। एक अल्लाह के वली जिनका मुरीद भी वली, अल्लाह अकबर, दरिया के किनारे दोनों पीर और मुरीद पहुंचते हैं। उस जमाने के पीर भी बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे और आलिम हुआ करते थे, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कुर्ब की दौलत से माला माल हुआ करते थे, और जो मुरीद भी हुआ करते थे उनकी तरबियत भी कुछ इस तरह से हुआ करती कि वो भी विलायत के मकाम पर फाइज हुआ करते थे। अल्लाह अकबर, पीर और मुरीद दोनों दरिया के किनारे पर मौजूद हैं। पीर साहब रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह करम की नजर फरमा, ए अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल फरमा, ए अल्लाह इस परेशानी को से नजात अता फरमा। इस तरीके से वो दुआएं कर रहे हैं। गैब से आवाज आती है, मेरे बंदे मैं तेरी दुआओं को कैसे कबूल करूं। इत्तेफाक से पीर साहब ने तो सुन लिया, लेकिन मुरीद भी वली था, मुरीद ने भी ये बात सुन ली। तो सुनने के बाद इत्तफाक या उसकी जबान से ये बात निकली, जब हुजूर रब्बे कदीर हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता तो दुआ करके क्या फायदा। इतना सुनना था कि पीर साहब ने जो जवाब दिया उसे समाअत फरमाएं। अल्लाह अकबर। पीर साहब ने जवाब में इरशाद फरमाया, उससे बड़ा कोई हो तो बताओ जिसके दरवाजे पे दस्तक दी जाए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू को ये अदा इतनी पसंद आई कि गैब से निदा आती है, मेरे बंदे आज के बाद तू जिसके लिए दुआ करेगा तेरी दुआ को कबूल कर ली जाएगी। आप अंदाजा लगाएं, कभी रब के दर से मायूस ना हो। मुझे यहां पर एक खातून का तस्करा करना मुनासिब होगा। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग अपने शागिर्दों से नसीहत फरमा रहे हैं और नसीहत में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दिया करो, कभी तो दरवाजा खुल जाएगा। दुआएं बराबर करते रहो, कभी तो दरवाजा खुल जाएगा। एक बुढ़िया औरत बैठी हुई थी। बुढ़िया ने जब यह सुना तो कहा, बाबा आपने क्या फरमाया? अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दो, दरवाजा कभी ना कभी खुलेगा। बाबा गजब कर दिया आपने, मेरे रब की रहमत का दरवाजा बंद कब होता है कि खुलने की बात हो। अगर उसकी रहमत का दरवाजा खुला ना हो तो हम एक पल जी नहीं सकते, हम एक सांस ले नहीं सकते। ये उसका करम है, उसकी रहमत है कि हम जी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, चल भी रहे हैं।
हाँ उसकी बारगाह में दुआएं मुसलसल करते रहना चाहिए। तो अर्ज ये कर रहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की जानिब से अगर मुसीबतें आती हैं तो उन मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए और उन मुसीबतों की वजह से अपने रब से ताल्लुक को तोड़ना नहीं चाहिए। मुझे बताओ जिसने मुसीबत भेजी है उससे बड़ा मुसीबत को दूर करने वाला कौन हो सकता है। हमें उसके फरमान पर अमल करते हुए उसके फैसले पर राजी रहते हुए उसकी बारगाह में इल्तिजाएं करना चाहिए, उसकी बारगाह के अंदर मारूजात पेश करने चाहिए, उसकी बारगाह के अंदर दुआएं करते रहना चाहिए। और याद रखें कुरान ने बड़ा प्यारा लफ्ज इंतखाब फरमाया, कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया अल्लाह पर भरोसा कौन करता है, वही करता है जो मोमिन है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हजरात याद रखें दुआएं हमेशा करनी चाहिए, क्या पता किस वक्त अल्लाह आपकी दुआ को कबूल कर ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।